Okay, so let us chant Omkar 3 times, then we shall begin. Siren. भूमि भी आ गई है, अदिति, भूमि, देशना, कनक, खुशी, पूर्वी, प्रियांशु, संभव, शिवम, स्वास्तिका, वैष्णवी. Okay. So now let us discuss. So yesterday we solved some problems using straight line method or fixed installment method. So we discussed there are two methods of calculation of depreciation. One is the straight line or fixed installment method, and second one is the diminishing balance method. So today we will solve a question where we will have one or two machines, two or three machines, and we will also understand how to calculate profit or loss at the time of sale of machine, and how to calculate depreciation by using diminishing balance method. So let me share the screen. So I can use this Android board. अच्छा, इसकी वजह मैं काम करता हूँ, इस पे नहीं करता, मैं इसका करता हूँ टाटा क्लासेस वाला बोर्ड यूज करेंगे. उसमें वो सेम बोर्ड को आगे बढ़ा सकते हैं. इसमें हर बार नया लेना पड़ता है तो पुराना वाला दिखता नहीं है. सो मैं अभी आपकी क्लास को मिनिमाइज कर रहा हूँ. एंड लेट मी अगेन गो टू द गूगल क्रोम. टाटा क्लासेस का बोर्ड यूज करेंगे हम लोग. ओके, टाटा क्लासेस. Let me minimize it. Okay, so now let me share the screen. Chrome tab, classes, share. So now we will take the whiteboard of classes. Okay, and we will use text. टेक्स्ट में पेन काम करेगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं कैसे काम करेगा कि नहीं करेगा. टेक्स्ट लेना पड़ेगा. चल भाई, क्या परेशान हो रहा है.
Okay, so now here is the whiteboard. So let us use this whiteboard. So डेप्रिसिएशन ये तो काम नहीं कर रहा है, कैसे काम करेगा? टेक्स्ट से काम नहीं करेगा ये, टेक्स्ट से नहीं काम करेगा तो किस पे जाना है? इसमें पेन के लिए डिलीट करना है, इसे पेन चूज करना है, तो आएगा इसे। अभी नहीं काम कर रहा है तो अच्छा वाइट बोर्ड पर रखता हूँ। क्रिएट न्यू, पेन चूज किया। अब सेटअप कैसा
Okay, Sairam. Present, sir. So now let us, Shivam, let us begin with the topic and question. So, where is the eraser? Eraser. No, this is not eraser. Back to the pen. So I'm writing here. You note this question. X Limited purchased a machine for rupees 1,20,000 on 1st April 2016. Is it readable? पढ़ सकते हैं क्या आप लोग इसको? Yes, sir. ठीक है. 1st April 2020. Sorry, 16. On 1st July 2017, company purchased one more machine for rupees 80,000 on 1st October 2018. Company sold the machine which was purchased on 1st April 2016, for rupees 70,000, and on the same date company purchased one more machine for rupees 2 lakh. Company provides 10% per annum depreciation by diminishing balance method on 31st March every year. Okay. Company provides 10% per annum depreciation by diminishing balance method on 31st March every year. Okay. Now, prepare machinery account for 3 years. Sairam, clear? This is the question. So we have to use diminishing balance method and we have to prepare machinery account for 3 years. Okay. So now, let us prepare machinery account. Question समझ में आ गया सब लोग को? Sairam? Yes. Question समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. So now let us prepare machinery account.
आप एक बार ऊपर करोगे, वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी देखो। ये सही यही रुकिए। ठीक है, हो गया, पढ़ाऊंगा आगे स्पष्ट का। हाँ ये सर लिख लिया मैंने। ठीक। So now here we are preparing machinery account. ठीक है। So first machine was purchased on 2015 April 1st. 2015 April 1st. So what is the entry? Machinery account debit to cash or bank account. This is the entry. So we will write here to cash account. cash account. Okay. And because we have more than one machine, so we will give them name A, B, C, D. Okay. So first machine is purchased for how much? कितने की परचेज की है? 1,20,000. हाँ जी, it is purchased for rupees 1,20,000. Second machine is purchased on which date? दूसरी वाली कब परचेज की है? 1st July 2017. That will be in the next year. इस साल में नहीं है वो, ये ईयर कब एंड हो जाएगा हमारा? This year is starting on April 1st, so it will end on 2016 March 31st. है ना? This will end on March 31st. So we have only one machine in this year. So we will charge depreciation on this machine only. That is A. And rate of depreciation is 10%. So 10% of 1,20,000 is 12,000. Is it clear? Sairam? Yes sir. Yeah. Entry depreciation account debit to machinery account. Now balancing by balance CD. A machine. तो 120 माइनस 12, इसकी कॉस्ट है 1,20,000, उससे डेप्रिसिएशन माइनस करिए 12,000, तो बचेगा 1,08,000। टोटल कर दीजिए 1,20,000, 1,20,000। अभी तक कोई डाउट किसी को तो बताइए। एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? सर हाँ जी सर फर्स्ट वाली मशीन 2016 में खरीदी थी। ये 16 में खरीदी है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ 16 कर दीजिए या 17 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 2017 आ जाएगा, 2017 अप्रैल 1st। टू बैलेंस BD, सबसे पहले इस बैलेंस को लाएंगे जो क्रेडिट साइड में है, ये मशीन का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस था नेक्स्ट ईयर में जाके दिस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस BD मशीन A, इसका बैलेंस बचा है 1,08,000। अब हमने जुलाई 1st को खरीदी ना, जुलाई 1st 2017। Yes sir. तो जुलाई 1st में आ जाइए, क्या लिखेंगे? जुलाई 1st अगेन टू कैश अकाउंट। This is the second machine, so we will give name B. It is purchased for 80,000. अब जो थर्ड मशीन खरीदी है वो इस साल में नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर में जाएगी, क्योंकि वो अक्टूबर में खरीदी है, तो ये ईयर एंड हो जाएगा अप्रैल में। इसलिए क्या करेंगे अब हम लोग 2018 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब दो मशीन है हमारे पास A एंड B। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड
एंड डिमिनिशिंग बैलेंस में बुक वैल्यू पे लगाते हैं। तो एक ही कॉस्ट प्राइस तो 1,20,000 की, लेकिन अब बुक वैल्यू कितनी है उसकी जो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, कितनी है 1,08,000। दिस इज द बुक वैल्यू ना, 1,08,000 इज द बुक वैल्यू। तो 10% ऑफ दिस बुक वैल्यू दैट विल बी 10,800। ओके, एंड बी इज ऑफ 80,000। बी की जो प्राइस है वो 80,000 है, लेकिन इसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो 8,000 आता, लेकिन इसको हमने परचेज किया जुलाई में, यानी इसको 9 मंथ ही यूज किया इस साल में, यानी जिस डेट में परचेज किया उससे लेके आगे के मंथ काउंट करेंगे ईयर एंड तक। तो जुलाई से काउंट करिए मार्च तक, कितने मंथ हो रहे हैं? सही राम सर 9 मंथ। सर 9 मंथ। ना, तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे इस साल? बिकॉज़ इट इज नॉट यूज्ड फॉर द फुल ईयर, इट इज यूज्ड ओनली फॉर 9 मंथ। तो इसका डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल सकते हैं आप, 80,000 कॉस्ट प्राइस इसकी इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10/100, तो बुक वैल्यू या कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12, 9/12। एक साल का 8,000 आ रहा है, तो 9 मंथ का आएगा 6,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 6,000 आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन इसका। क्लियर हुआ सबको ये? सही राम? यस सर, आ ठीक रहा है, है। तो टोटल डेप्रिसिएशन दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 16,800। अब बैलेंसिंग करेंगे बाय बैलेंस सीडी। ए का और बी का अलग अलग निकालेंगे। ए की वैल्यू 1,08,000, इसका डेप्रिसिएशन है 10,800, माइनस करो तो कितना बचेगा 97,200। शायद माइनस करके देखो, 1,08,000 माइनस 10,800 कितना बचा 97,200। ठीक है कि नहीं है? सही राम? यस ठीक सर। है, और इसका बचेगा 80। कैसे निकालते हैं बैलेंसिंग को भी समझ लो। जिस मशीन का वैल्यू है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1,08,000 है यहाँ पर, ए का डेप्रिसिएशन है 10,800, तो ए की वैल्यू से ए का डेप्रिसिएशन माइनस करो तो ए का बैलेंस आ गया। अब बी की वैल्यू दिख रही है आपको 80,000 और बी का डेप्रिसिएशन है 6,000, तो बी की वैल्यू से बी का डेप्रिसिएशन माइनस किया 6,000, तो इसका बैलेंस बच गया 74,000। टोटल बैलेंस हो गया हमारे पास 0 0 2 1 7 1, 1,71,200। टोटल का दीजिए इसका, दोनों साइड का टोटल इक्वल हाइट पे आएगा, तो टोटल हो गया 1,88,000 इधर का, और इधर की आना चाहिए 1,88,000, इधर का भी आ गया 1,88,000। ओके, इतना क्लियर है आपको? सही राम? किसी को डाउट है इसमें? यस सर। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड ईयर में। हाँ जी, एक बार लास्ट एंट्री बोलो। समझा दोगे? हाँ बोलो, कौन सी वाली? सर अभी जुलाई वाली, जुलाई 1 की। जुलाई का ये जो बी मशीन परचेज की, मतलब सेकंड मशीन जो परचेज की है, हाँ। वो कब परचेज की? हमने जुलाई में परचेज की, जुलाई 1 को। ठीक है, यस सर। और हमारा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल को, यस सर। है ना? तो कितने मंथ ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं जुलाई तक? अप्रैल मई एंड जून, 3 मंथ तो जा ही चुके हैं इस ईयर के। यस सर। इसका मतलब कितने मंथ बचे? 9 मंथ। तो जो मशीन जुलाई 10 को परचेज की, वो कितने टाइम यूज करेंगे इस ईयर में? इस अकाउंटिंग ईयर में कितने टाइम यूज होगा? 9 मंथ, है ना? यस सर। या इस डेट से, आप तो ये याद रखो, जिस डेट में परचेज किया उस डेट से लेके, या इस मंथ से लेके ईयर एंड वाला जो मंथ है उस तक काउंट कर लो। तो जुलाई से लेके मार्च तक के मंथ काउंट करेंगे तो 9 मंथ आ जाएंगे आपके।
यस तो सर। परचेज जब करते हैं तो आगे वाले मंथ काउंट करेंगे, और जो सेल करते हैं तो उससे पीछे वाले मंथ काउंट करते हैं, ध्यान रखना। जब परचेज करेंगे तो आगे वाले मंथ काउंट करना है, जिस मंथ में मशीन परचेज की है उससे आगे वाले मंथ ईयर एंड तक। और जब पर सेल करेंगे तो पिछले वाले मंथ काउंट करते हैं, जिस मंथ में सेल की है उससे लेके पिछला ईयर एंड कब हुआ था, यानी ईयर स्टार्ट कब हुआ था हमारा उस तक। तभी समझ में आएगा आपको। इसमें कोई डाउट है? तो हमने 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला तो 6000 आ गया इसका डेप्रिसिएशन। क्लियर है यस सर। क्या? ठीक है। अगर इसको हम हाँ सर। पूरे साल यूज करते तो पूरे साल का लगाते हैं ना। पर एनम दिया ना, टर्म पर एनम इज गिवन। ये हाँ मैंने हाँ। शुरू में बता दिया था आपको, पर एनम दिया इसलिए हम टाइम के हिसाब से लगाएंगे, जितने टाइम यूज किया उतने टाइम पे लगाएंगे। अब आ गया ईयर 2018। सबसे पहला काम तो वही करेंगे, अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। बैलेंस लेके आएंगे, ए और बी का सेपरेट लाएंगे। ए का बैलेंस ऊपर कैसे जाएगा? ए का बैलेंस है हमारा 97,200 और बी का बैलेंस है 74,000। दोनों मिला के हो गया 1,71,200। ठीक है। अब इसको चला ही गया, वो तो प्लस किया था, वन पे आ जाता हूँ वापस। ठीक है, इसमें वापस आया तो ये आ गया हमारा। ठीक है, हम लोग यहाँ तक आ गए थे अभी, 1,71,200 तक आ गया। ठीक, इसको और बढ़ाते हैं नीचे। अब इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें अभी? सही राम, अभी तक कोई डाउट? नो सर, आ गया। ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये आगे कैसे बढ़ेगा समझ नहीं आ रहा। इससे भी नहीं जा रहा है, इससे तो नीचे जा रहा है, इससे यहीं तक आ रहा है, मतलब इसके आगे नहीं जाएगा शायद ये। इसको नेक्स्ट ही लेना पड़ेगा हमको। इससे आगे जाने वाला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी मर्जी। मैं प्लस कर लेता हूँ, अगले पेज पे बना रहा हूँ। इस बैलेंस को अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। यहाँ पे मैंने कैरी फॉरवर्ड किया इसको। कहाँ गया पेन? दे दो। यूज करता हूँ, चलो ठीक नहीं हो रहा तो देखता हूँ। इरेजर कहाँ गया? प्लस किया बाई 4, टेक्स्ट किया किया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम, इस पे काम नहीं कर रहा है। वो वाला बोर्ड तो आगे नहीं बढ़ रहा है और इस पे काम नहीं कर रहा है। टेक्स्ट में अनडू कर दिया। ये लो, चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। इसी पे बन पे आए, इसको रेस किया, रेजर भी नहीं मिल रहा है, कहाँ से आ गया?
एक मिनट रुको, अभी मैं आता हूँ इस पे, अभी इस पे करते हैं हम लोग। इसको स्टॉप करो, इसको मैं एक मिनट जाओ। आई एम कमिंग बैक टू द मीटिंग। Okay, now let me share again. Present now. Entire screen. Okay, share. ठीक है। कैनवास। ओके, इस पे काम करते हैं, चलो इसको छोड़ो। तो अभी आ गया आपका 2 साल का कंप्लीट हो गया हमारा, और नाउ वी आर गोइंग फॉर 3rd ईयर। अब मुझे बता दो डिटेल्स में, इसको चाहे कॉपी कर लेता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा पूरा कैलकुलेशन। ये आ गया, ये आ गया इधर, ठीक है। इधर आ गया ये। कौन सा ईयर आ गया था हमारा? 2018 है सर। देखिए साईराम, यस सर। अप्रैल 1 हम लोग बैलेंस लेके आए यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी। ए का बैलेंस कितना बोलो जरा, ए का बैलेंस कितना है साईराम? 97,200। 97,200। बी का 74,000। ठीक है, टोटल हो गया 1,71,200। यही है ना? यस सर। अपना बैलेंस लेके आ गए। अब इस साल का देखो क्या हुआ है। इस साल में 1 अक्टूबर को 1 मशीन इज परचेज, 1 मशीन इज सोल्ड, 1 मशीन इज सोल्ड एंड 1 मशीन इज परचेज। यही हुआ ना देखो अक्टूबर 1 में। सही राम, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो अक्टूबर 1 में सबसे पहले हम परचेज की एंट्री कर लेते हैं, सेल का बाद में करेंगे अभी। तो फिर दोबारा लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये मशीन हो गई सी, इट इज परचेज फॉर ₹2 लाख। क्लियर है? अब क्या किया, इसी डेट में 2018 अक्टूबर 1 को हमने एक मशीन बेच दी। कौन सी मशीन बेची है? मशीन ए, जो सबसे पहले खरीदी थी उसको बेच दिया। तो मशीन बेचेंगे तो इधर आएगा बाय कैश अकाउंट, क्योंकि एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सोल्ड ए, इट इज सोल्ड फॉर हाउ मच? कितने में बेची मशीन ए साईराम? सेल्स प्राइस कितना है? 70,000। 70,000। तो सेल्स प्राइस पे आ गया इधर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो जब मशीन बेचेंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। नाउ दिस मशीन इज यूज इन दिस ईयर। 18-19 का जो ईयर है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और हमने इस मशीन को कितने मंथ यूज कर लिया? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को बेच दिया, तो अक्टूबर में तो यूज नहीं किया, तो 6 मंथ यूज किया इस मशीन को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So from April till September we have already used this machine in this year. It means we have to provide 6 month depreciation on this machine in this year. तो यहाँ इसी डेट में अक्टूबर 1 में जब हमने इसको बेचा उसी दिन इसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट ए। कितने मंथ का? 6 मंथ का। कैसे निकालेंगे? देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ ए, बुक वैल्यू कितनी है? एक ही अभी, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस का यूज कर रहे हैं, तो बुक वैल्यू को निकालेंगे। बुक वैल्यू है 97,200। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10/100 इनटू मंथ अपॉन 12, 6/12। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 1 2 1 2 6 2 या 12, 2 4 या 8, 2 8 या 16, 2 6 या 12, 4 8 6 60 आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट साईराम? यस सर। 6 मंथ का क्यों लगाया हमने डेप्रिसिएशन इस पे? यस सर। क्योंकि बेचने से पहले इस मशीन को हमने इस साल में 6 मंथ यूज किया, इसलिए 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो समझिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन मशीन सोल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कैसे निकालते हैं हम लोग वो।
आपको आसान तरीका भी बता दूंगा और स्टेप बाय स्टेप भी बता दूंगा, आपको जिससे समझ में आए आप उससे कर लेना। शॉर्टकट भी बता दूंगा, लॉन्ग कट भी बता दूंगा, कैसे निकालना है, सीधी बताऊँ तरीके से बताता हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं। तो हमने मशीन बेची है ए, ठीक। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये तो ये चल रहा है अभी हमारा। क्या लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन असेट सोल्ड। कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले कॉस्ट, नहीं सॉरी कॉस्ट तो आएगा नहीं, इसमें बुक वैल्यू आएगा हमेशा, कॉस्ट का तो सवाल ही नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर ऑफ सेल, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर ऑफ सेल। जिस साल वो मशीन बेची उस साल के शुरुआत में उसकी बुक वैल्यू कितनी थी। इस बार कौन सी मशीन बेची हम लोगों ने, इसमें ये मशीन बेची है, ए की बुक वैल्यू कितनी है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सही रहा, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ ए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। किसी को नहीं पता है, सही राम। सर 97,200। हाँ 97,200, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, सबको दिख रही है। ये रहा 2018 अप्रैल 1 है, इस साल में हमने मशीन बेची है तो साल के शुरू में एक ही बुक वैल्यू दिख रही है 97,200। इसमें से क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर इफ एनी। अगर उस साल का कोई डेप्रिसिएशन होगा तो हम उसको माइनस करेंगे इससे। हमने लगाया है इस पर, देखो जो अभी निकाला 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 4860 लगाया ना अभी, तो उसको माइनस कर दीजिए तो बच गए कितने, 92340, ये बचा ना। ठीक है, ये क्या आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ सेल्स। जिस दिन मशीन बेची उस दिन वो कितने की थी, ये आपके पास आ गया अभी। तो जब हमने मशीन बेची 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को उसकी वैल्यू कितनी बची थी, 92,340। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सही रहा। अब आपको कंपैरिजन करना सेल्स प्राइस से, कितने में बेची। अगर इससे कम में बिकी होगी तो लॉस होगा, इससे ज्यादा में बिकी होगी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखी माइनस सेल्स प्राइस। माइनस सेल्स प्राइस कितना है, 75,000। 75,000 में बेची ना, तो क्या हो गया, 70,000। 70,000। ओके ओके, 04322, 22,340 का लॉस हो गया, क्योंकि कम में बिकी। मशीन कितने की थी हमारी, 92,340 की थी, और बिकी कितने में, 70,000 में, तो लॉस हो गया 22,340 का। इज इट क्लियर। यस सर। सही राम। तो इसको लॉस है तो इधर आएगा, एंट्री की थी ना हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ जाएगा इसी डेट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ए 22,340। ये ऐसे हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ज्यादा बिक जाती तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। इज इट क्लियर, स्टेप्स आर क्लियर। यस समझ में आ गए सबको स्टेप्स। सही राम। यस सर। यस सर। अब दूसरा शॉर्टकट दे तो लॉन्ग कट हो गया, शॉर्टकट बताता हूँ क्या करना है। देखो आपने कौन सी मशीन बेची है, मशीन ए बेची है आपने। मशीन ए की वैल्यू उठा लो आप, कितने की दी है आपको साल के शुरू में, 97,200 की है। दिख रही है ना सबको। सिंपली क्या करना है, इसमें से
ये दो चीजें आपने इधर लिखी हैं, क्या क्या है इधर, ये दो चीजें माइनस कर दो ऐड करके। कौन कौन सा, उसकी सेल्स प्राइस और उसका डेप्रिसिएशन। कितना हो गया दोनों मिला के, 70,000 और 4,860। तो 74,860 इससे माइनस कर दो, ये आ गया आपका लॉस, काम खत्म। समझ में आया क्या आपको? डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्रेडिट साइड में तो दोनों मिला के सेल्स प्राइस 70,000 और डेप्रिसिएशन 4,860 है ना। डेबिट साइड में इसकी वैल्यू 97,200, तो 97,200 से इन दोनों को माइनस किया तो डिफरेंस जो है वो लॉस हो गया। अगर ये वाला अमाउंट बड़ा होता क्रेडिट का तो प्रॉफिट हो जाता, काम खत्म हो, इतने में आ जाता है प्रॉफिट लॉस। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, स्टेप लिखने की ये नीचे। कितने लोग को समझ में आया शॉर्टकट है? काम वही किया जो आप नीचे 3-4 स्टेप में किया, वहां एक स्टेप हो गया इधर। देखिए बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वही आ गया 97,200, डेप्रिसिएशन आ गया 4,860, कितने में बेची वो आ गया, डिफरेंस बचा वो लॉस हो गया। क्लियर है क्या? सही राम? यस सर। हाँ बोलो भाई, आप क्या करना है, काम खत्म हो गया, एक का हिसाब किताब बराबर हो गया, एज नो मोर। अब ये वाला ईयर एंड होगा हमारा कब होगा, 2019 मार्च 31 को। फिर सेम प्रोसेस बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कौन कौन सी मशीन बच गई हमारे पास, बी एंड सी। बी का तो पूरी साल यूज किया है तो पूरी साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 7,400। सी को हमने परचेज किया अक्टूबर 1 को, अक्टूबर 1 को परचेज किया, इसको मतलब 6 मंथ यूज किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इज इट क्लियर? तो एक साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख का 20% निकालेंगे, सॉरी 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000 आएगा। 6 मंथ का निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000। क्लियर है क्या? ये अक्टूबर में खरीदी ना मशीन तो 6 मंथ यूज किया, तो 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 कर लीजिए, 10,000 आ जाएगा। बाय बैलेंस सी डी, बी एंड सी बैलेंस कर दो। बी की वैल्यू से बी का अमाउंट माइनस करो, 74,000 माइनस 7,400 कितना बचा, 66,600। इसकी वैल्यू बच गई बी की, और सी का बच गया 1,90,000। दोनों का मिला के हो गया 256,600, 2,56,600 टोटल हो गया इसका दोनों का। ग्रांड टोटल कर दीजिए तो हो जाएगा 3,71,200। इधर भी हो जाएगा 3,71,200। अगले साल ले जाके छोड़ देंगे इसको, 2019 अप्रैल 1 में ले जाके छोड़ दीजिए। टू बैलेंस बी डी, बी एंड सी। बी की वैल्यू 66,600, सी की वैल्यू 1,90,000, टोटल मिला के 2,56,600। दैट्स ऑल, आपका खत्म हो गया। अब बताइए क्या हुआ, इसमें सारी प्रॉब्लम्स आ गई आपकी, है ना। 3 मशीन्स आ गई, एक मशीन बेच दी आपने, प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आ गया। क्लियर है सबको? सही राम? यस सर। अब क्या है, अब आपको सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इधर वाली मेथड के, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं पूछा होगा वो वाली मेथड है हमारी, है ना। तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बाकी काम अब अगली क्लास में करेंगे, अभी तो टाइम हो गया लगभग, क्योंकि अगली क्लास में होगी फिर आपकी नेक्स्ट क्लास। सो आई एम स्टॉपिंग प्रेजेंटिंग एंड कमिंग बैक टू द मीट। मीट इधर है, ओके। So only 8 students are here. Okay. Sai Ram, so you can leave now. Thank you, Sai Ram. Sairam sir, thank Saram you. sir. Sai Ram.